Hello everyone, today continue the chapter Control and Coordination. Today we study about the human endocrine system. We know that there are the two types of the gland in present our body, endocrine gland and exocrine gland. Endocrine gland might be ductless gland. That means they produce hormone and directly secreted to blood via capillary. And exocrine gland, they discharge the substance which produced in the exocrine gland via duct, such as the salivary gland, buccal cavity, gastric gland, etc. And endocrine produce hormones. They are mainly 10 type: hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas or adrenal gland, and gonad. That means in male present in testes and female present ovary. We study one by one. Hypothalamus, you know that very well, that present in the midbrain, and they also control the our thermal temperature. They also call the thermostat in our body. They also produce the some hormones. They imitated the pituitary gland. And second, pituitary gland, they is also known as master gland, because they control all gland such as the thyroid, parathyroid, all are the controlled by the pituitary gland, so that the pituitary gland is called a master gland in our body. Thyroid, that is attached over the neck, or you do not very not know that they produce the thyroxine. This is necessary for iodine, or the thyroxine control metabolic rate of the fat, protein and carbohydrate. And calcitonin, that is balance of the PTH. PTH, the full form parathyroid hormones. And parathyroid gland, and second is the parathyroid gland. They embedded the thyroid gland. They produce parathyroid hormone and maintain the level of the iron in our bodies. Thymus gland is the lies lower part of the neck and upper part of the chest. They produce the hormone, develop the immune system in the body. That way, against the certain of that, they fight against the disease. Pancreas. Pancreas is just below the stomach in both exocrine and endocrine. That means they produce hormones and digestive juice also. Hormones that they produce insulin, that decrease the level of the glucose in level in our blood, and glycogen, they increase the blood level, glucose level in our blood. And gonad, they in male produce testes, they produce testosterone, they are the responsible for development of the secondary sexual character in the male. In ovaries, they produce the hormone estrogen and progesterone. Estrogen stimulates the puberty change and functional reproductive organ, and progesterone, the fix the fetus to placenta, suspended during the ovulations, and also present relaxing hormone that relax the pelvic ligament during the birth of the child. बच्चों, हमने इस चैप्टर में जाना कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जिसमें डक्ट की जरूरत है, बिना डक्ट के द्वारा डायरेक्ट वो क्या होता है, वो जो सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस बनते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड. उसको ये जितने भी इंडोक्राइन, 10 टाइप के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस, और ये डक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंडोक्राइन. इंडोक्राइन का मतलब कि वो डायरेक्टली वो क्या था, बिना डक्ट के द्वारा जो सेक्रेशन फोर होता है डायरेक्ट ब्लड में होता है, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. एक्सोक्राइन का मतलब होता है जैसे जिसका डक्ट होता है, जैसे कि आप देखे होंगे जो खाना पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो डक्ट के द्वारा ही निकलते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमने बताया कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड. ठीक है. ये सभी का हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे. हाइपोथैलेमस के बारे में आपको मैंने बताया था ब्रेन के चैप्टर में ही कि ये
मिडिल ब्रेन में रहता है, और ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, यानी कि हम लोग जो एक वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं तो ड्यू टू हाइपोथैलेमस के चलते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। अगर वो ज़्यादा गर्म है तो बॉडी को ठंडा करने के शरीर से पसीना निकालना, ठीक है। अगर वो ज़्यादा क्या कहता है ठंडा हो रहा है तो देखिए हमारे केस को जो बालों खड़े हो जाते हैं कि हमारा हीट कम शरीर से बाहर निकले, यानी ये सब यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस को ये इसको रेगुलेटिंग के साथ साथ एक और भी वर्क होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का, जो ब्रेन के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप मिडिल ब्रेन में देखें, दोनों एक साथ ही अटैच होते हैं, वहीं पर हैं, तो वो ये इमिटेट करने का, मतलब उसको एक्टिवेट करने का। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में, सारे को एक्टिवेट करने का काम, सारे को उसके जो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट करने का काम आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, ठीक है। इसलिए आपको गौर कीजिएगा कि बार बार बोला जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग में रहता है, इसलिए दिमाग हमेशा ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम जो है ब्रेन के द्वारा, ब्रेन के अंदर को अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ढंग से काम नहीं किया तो समझिए कि सारा आपका जो जितने भी एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी और भी ग्लैंड है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, फिर उसका इफेक्ट आपका पड़ेगा, आपके लाइफ पर भी पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे जो गले होते हैं वहाँ के पास होता है, वो नेक पाइप होते हैं, और इसका जो सबसे जो मेन हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट का, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट होता है जो आप लोग खाते पीते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर वो थायरॉक्सिन का अगर हार्मोन का अगर आपके घर में कम सिक्रेशन होगा तो जो भी आप खाते हैं तो उसमें जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में क्या होता है एक जीवद्रव बनाता है, तो वो नहीं बन पाएगा। यानी कहने का मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग खा रहा है लेकिन वो उसके शरीर में लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके मेन होता है थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन अगर नहीं है तो मेटाबॉलिक रेट की कमी, जितना आप खाते हैं वो शरीर में वो सर लगेगा नहीं। नहीं कहने मतलब वो जो आपके शरीर में वो उतना जो प्रोटीन फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और एसिमुलेशन नहीं हो पाएगा, वो सारा काम इसका थायरॉक्सिन का काम है। इसलिए थायरॉक्सिन के बनने में आपका ये आयोडीन की जरूरत होती है, तो आयोडीन इसलिए कहा जाता है आयोडीन नमक को खाना चाहिए, ठीक है। और ये कैल्सीटोन जो हार्मोन जो है जो हमारा एक कैल्शियम का बैलेंस करता है, अगर इसका अगर ज़्यादा या कम होने पर आदमी का हाइट का बढ़ना या घटना सब इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही रहता है और इसका काम होता है कि हमारे ब्लड में जो आयंस लेवल है उसको मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि आपका जो मालूम होना चाहिए कि जो आपका जो सिग्नल जो ब्रेन को जाता है ना, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के जो आगे क्लासेस में पढ़िएगा, वो सारा एक आयन के थ्रू जाता है। दैट मीन्स उसके लिए सोडियम और पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है, जो आगे आगे हाई क्लास से पढ़िएगा। तो ये जो हमारा जो मिनरल्स का मेलन जो है उसका करना उसी का होता है, ठीक है। थाइमस का जो होता है ये हमारा लोअर नेक में होता है और चेस्ट के ऊपर पार्ट में होता है, और इसका काम जो होता है कि हमारे इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद होता है कि हम लोग बात आता है पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों होता है, ठीक है। वो भोजन पचाने के लिए एंजाइम भी बनाता है और हमारे क्या कहते हैं ये हार्मोन भी सिक्रेशन करता है, जो इंसुलिन के बारे में जो है आज के डेट में देखिएगा ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज का मेन रीज़न होता है इंसुलिन का हमारे शरीर में कम सिक्रेशन होना। तो इंसुलिन क्या होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन आपके शरीर में बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी को बीमारी कहते हैं डायबिटीज। और इसलिए ज़रूरी है कि इंसुलिन जो है आपका शरीर में बना रहे। अगर ना हो तो फिर देखिएगा डॉक्टर लोग इंसुलिन का इंजेक्शन टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपका शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन का टैबलेट दिया जाता है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? एक्सेस फैट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इमरजेंसी पीरियड में यही क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, जिससे एनर्जी मिलने के काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया एड्रिनल पेनक्रियास का काम होगा। एड्रिनल ग्लैंड का काम जो होता है इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। हमारे जितने किडनी है, किडनी के ऊपर में पाया जाता है और ये जो है इसमें जो आपका एड्रेनलिन
and corticoid regulate the birth rate, heart rate and the blood pressure, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल बैलेंस, सारा का काम करने का जो बहुत, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। आप गौर किए होंगे कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, कभी फिल्मों में देखे होंगे, जैसे फिल्म गदर में दिखाया गया है कि वो आपके ये सनी देओल चापाकल कबाड़ लिए, कैसे, क्योंकि वो गुस्सा में ऐसा होता ही है। गुस्सा में आप गौर कीजिएगा कि हमारे शरीर में जैसी एड्रेनलिन का सेक्रेशन होगा, जिसके शरीर में जितना एड्रेनलिन जितना सेक्रेशन होगा उसका गुस्सा उतना ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन यानी कहने मतलब ये आपको ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको शरीर में बहुत सा एनर्जी महसूस होगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा गुस्से में आदमी बहुत कुछ कर देता है, उसमें बहुत एनर्जी महसूस करता है, उसका रीज़न होता है एड्रेनलिन का वजह होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गोनाड की बात करते हैं। तो गोनाड जो है, जो वो मेल की बात करें तो उसमें है आपका टेस्टिस। टेस्टिस में बनते हैं टेस्टोरोन, आपको क्लास 8 के चैप्टर में पढ़ाया था एडोलसेंस। ठीक है, जितने भी जैसे जो बड़े जो बच्चे जो होते बॉयज़ है, उसके जो सेकेंडरी कैरेक्टर जो है, जैसे आपका ये दाढ़ी पड़ना, मोछ बढ़ना, ये सब जितना भी जो कैरेक्टर जो है आपका, ठीक है, आवाज़ का भारीपन होना, ये सब जो आपका सेकेंडरी कैरेक्टर है, सारा कुछ इसी हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरी की हम लोग बात करें तो ओवरी में 3 तरह के, एक होगा एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, 3 तरह के हार्मोन उसमें निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन का काम होता है कि फीमेल में उसके जो कैरेक्टर है, सेकेंडरी कैरेक्टर, उसको बढ़ाना। ठीक है, उसके जो ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करने का पूरा काम उसी का। और प्रोगेस्टेरोन जो होता है वो क्या होता है, फीटस जो को फिक्स करता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा को मालूम होना चाहिए कि जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चैप्टर में हम बताएंगे कि प्लेसेंटा का वर्क होता है कि मदर से जो भोजन बच्चे को मिलना, जो माँ जो बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसमें जो उसका भोजन इसी के थ्रू से मिलता है। रिलैक्सिन जो होता है ये ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चे जन्म जब देती है जो मदर, तो उस समय उसके जो रिलैक्सेशन हार्मोन से वो क्या होता है कि रिलैक्स होकर वो बच्चे को जन्म देने में आसानी हो, ये हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और कितने तरह का सबका फंक्शन, इसमें एक एक हार्मोन्स का नाम आपको याद होना चाहिए, ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।